Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. I will continue with our one topic 1 week series on accountancy, and today in this video I will cover joint venture accounting. More videos will be uploaded daily in this week, so subscribe if you haven't subscribed, and if you have any queries just drop them in the comment box. I will surely address your concerns. And just to remind, through my channel I am here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos, and let's begin now. So as you know, today we will cover joint venture accounts. So let's first know about joint ventures. So what are joint ventures? These, in a very simple words, are business ventures that two or more people or entities undertake for a certain period of time. They are created keeping specific and predetermined purposes in mind. So what are joint ventures? We can say that such a business venture that two or more people or two or more entities they undertake together for a certain period of time, and also before starting a venture they have a specific and predetermined purpose in their minds. So joint ventures हमेशा कुछ एक certain period के लिए ही उन्हें create किया जाता है, उनकी कोई perpetual existence नहीं होती है, and these are created for specific and predetermined purposes. और ये सारे जो जब specific purpose जिसके लिए उसे create किया गया इस तरह के venture को, जब वो complete हो जाता है तो joint venture comes to an end, and the venture generally comes to an end once those purposes are met unless the parties decide to continue working together. So जब कोई specific purpose जिसके लिए जॉइंट वेंचर्स क्रिएट किया गया था, अगर वो ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है वो स्पेसिफिक पर्पस, तो वो जो जॉइंट वेंचर होता है दिस कम्स टू एन एंड. बट अगर जो पार्टीज़ हैं, जो को वेंचरर्स हैं, इफ़ दे डिसाइड टू वर्क टुगेदर एंड कंटिन्यू देयर वेंचर, तो वो उसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं. So these parties to a joint ventures are governed by a contractual agreement they enter into. So ये सारी चीज़ें जो joint venture है इसे govern कैसे किया जाता है या वो controlling कैसे होती है इसकी बेसिकली, तो एक contractual agreement होता है और ये दोनों ही parties इसे sign करती हैं, इस agreement में enter करती हैं. These agreements specify things like their obligations, the rate at which they will share profits or losses, their rights and liabilities towards each other, etc. तो ये सारी चीज़ें predetermined अगर रहेंगी, contract में रहेंगी, तो फर्दर जो है डिस्प्यूट्स और केओस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं. तो इस तरह से वो अपने जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनके थ्रू दे स्पेसिफाई दी ऑब्लिगेशंस, दे सेटल अप दी रेट्स एट विच दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एंड ऑल्सो उनकी जो राइट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक दूसरे के लिए वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिसाइड करते हैं. सो मूविंग फर्दर, so parties that create such a joint venture are called co-venturers या joint venturers. ठीक है, these parties can be either natural persons, humans, और artificial legal persons यानी कि companies. So दो पर्सन यानी कि नेचुरल जो ह्यूमन होते हैं वो भी एंटर कर सकते हैं एक जॉइंट वेंचर में, या फिर जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन यानी कि कंपनीज होती हैं वो भी एज अ पर्सन जो है आर्टिफिशियल पर्सन वो भी पार्टीज बनकर जो है को वेंचरर्स हो सकती हैं, वो भी जॉइंट वेंचर में एंटर कर सकती हैं. सो ट्रांजेक्शन्स ऑफ सच joint ventures are peculiar. This is because these entities are neither singular in nature or nor they are treated as completely separate entities as such. So they are even different from typical partnership form of business. सो जॉइंट वेंचर्स जो है इन्हें आप पार्टनरशिप से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये उससे शायद सिमिलर होते हो, ऐसा कुछ नहीं होता. अभी हम फर्दर स्लाइड्स में ये भी देखेंगे कि पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर्स अलग कैसे होते हैं, क्या बेसिस ऑफ डिफरेंसेस हैं. और जो मोस्टली जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड व्हेन बिजनेस ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स लैक फंड्स और टेक्निकल नॉलेज और एक्सपर्टीज़. सो ऐसा क्यों होता है कि दो पीपल या दो पार्टीज़ जो है दे जॉइन टुगेदर इन अ वेंचर. सो ऐसा तभी होता है जब कोई एनी ऑफ देम लैक सम काइंड ऑफ फंड्स, दे लैक टेक्निकल नॉलेज और एक्सपर्टीज़ इन सम एरिया. सो इस तरह की चीज़ों की वजह से ही जो है जॉइंट वेंचर्स मोस्टली क्रिएट होते हैं. पीपल ऑल्सो फॉर्म जॉइंट वेंचर्स टू रिड्यूस देयर रिस्क वाइल एंटरिंग न्यू मार्केट्स. सो ऐसा कई बार ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इफ़ अ कंपनी इज़ एंटरिंग अ न्यू मार्केट एंड द अदर कंपनी इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन दैट मार्केट, तो वो क्या करते हैं उनके साथ वेंचर कर लेते हैं, सो दैट उनका जो रिस्क ऑफ एंटरिंग न्यू मार्केट, रिस्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग देमसेल्व्स इन अ न्यू मार्केट, वो जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है. So let's take an example of an airline industry. Requirements for large capital amounts and access to technology are typical characteristics to this industry. So एक जो है न्यू मार्केट की जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देख लेते हैं, एक एयरलाइन इंडस्ट्री का एक एग्जांपल है. सो एयरलाइन इंडस्ट्री के साथ क्या होता है मोस्टली कि बहुत ज़्यादा जो है लार्ज अमाउंट में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और टेक्नोलॉजी
की जो रीच है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें, रीच टू टेक्नोलॉजी यानी असेस टू टेक्नोलॉजी एंड लार्ज कैपिटल अमाउंट, ये दोनों चीज़ें बहुत जो है हाईली रिक्वायर्ड होती है अगर किसी को इस एयरलाइन इंडस्ट्री में एंटर करना है। तो अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स एयरक्राफ्ट कैन एंटर इनटू जॉइंट वेंचर विद अनदर कंपनी फॉर सप्लाइंग इट विद स्पेशल पार्ट्स। ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी जो है एयरक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है और जो अदर कंपनी है जो सप्लायर है जो कुछ सिर्फ स्पेशल पार्ट्स को सप्लाई करती है, मैन्युफैक्चर करती है, अगर वो दोनों मिलके एक जो है जॉइंट वेंचर फॉर्म करते हैं तो दे कैन बोथ एंटर इन अ न्यूअर मार्केट। एंड इंडियाज फेमस हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड जो HAL है इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस। सो अदर पॉपुलर इंडियन जॉइंट वेंचर्स कंपनीज क्या कौन कौन से हैं? महिंद्रा एंड रेनॉल्ट ने जो है किया था, एंड भारती और AXA जो जनरल इंश्योरेंस है इसलिए भारतीय AXA पढ़ते हैं इसको, ठीक है। वर्किंग इन दी ऑटोमोबाइल एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज रिस्पेक्टिवली। सो इंडिविजुअल्स ऑल्सो कैन क्रिएट जॉइंट वेंचर्स फॉर सिमिलर पर्पज। पीपल जनरली क्रिएट सच वेंचर्स इन इंडिया फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो इस तरह की चीज़ों में जब जो है कंपनीज़ नहीं ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं तो मोस्टली वो किस में होते हैं? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ट्रेडिंग बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। अदरवाइज आपने एग्जांपल में देखा कि महिंद्रा है, रेनॉल्ट ने किया था जो है ये इस तरह का जॉइंट वेंचर। और एक जॉइंट वेंचर जो है इंश्योरेंस में कौन सा है? भारतीय एंड AXA जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इनका वेंचर भी जो है जॉइंट वेंचर है, ठीक है। Next comes features of joint venture account. So what are the features of a joint venture accounts? So duration, it is formed for a short period of time, thus may be termed as a temporary partnership. So इसे हम temporary partnership कह तो सकते हैं पर ये partnership से बहुत अलग होता है। बट ये है जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक की ड्यूरेशन के बेसिस पे इसे फॉर्म किया जाता है। इट इज़ फॉर्म फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब तक कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जिसके लिए इसे जो है एस्टेब्लिश किया जा रहा है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इस वेंचर को कंटिन्यू किया जाता है। अदरवाइज ये वेंचर जो है इट विल कम टू एन एंड एज सून एज द ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट कम्स द पार्टीज। सो द पर्सन हु कम टुगेदर टू रन अ जॉइंट वेंचर आर द को वेंचरर्स। सो पार्टीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं? दो या दो से ज़्यादा लोग जो भी इस वेंचर का पार्ट होते हैं, पार्टीज़ होते हैं, दे आर नोन एज को वेंचर। Next comes the funds. So the co-venturers bring the funds for the joint venture account. So इस joint venture account, ये जो business अलग से separate जो है create किया जाता है joint venture account, joint venture business, तो इसके लिए funds कहाँ से आते हैं? जो co-venturers होते हैं, जो parties होती हैं, वही जो है इसमें funds invest करती हैं। नेक्स्ट कम्स शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस। तो इसमें क्या होता है, जो को-वेंचरर्स हैं दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन देम। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्लाइड्स में कि जो एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सबसे पहले वो क्रिएट किया जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं दोनों पार्टीज़ या दो से ज़्यादा अगर इन्वॉल्व हैं तो वो सारी पार्टीज़ जो है जॉइंट वेंचर में इन्वॉल्व हैं तो वो सब उसको इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही जो प्रॉफिट्स एंड लॉस है वो जो है शेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट कम्स computation of profits or losses. So usually the co-venturers compute the profit or loss of the venturers on its completion. So ऐसा नहीं होता कि अदर जो है बिजनेस फर्म्स की तरह ईयरली वो उसके प्रॉफिट या लॉस को जो है कंप्यूट करें या उसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ऐसा होता है कि जब को-वेंचरर्स जो है कंप्यूट कब करते हैं प्रॉफिट या लॉस? जब उनका वेंचर कंप्लीट हो जाता है तब वो कंप्यूट करते हैं कि कितना प्रॉफिटेबल था वो या कितना उन्होंने लॉस सस्टेन किया है। So let's see the difference between joint ventures and partnership. So हम सबसे पहले basis of difference और उसके साथ साथ ये पढ़ते जाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा आई थिंक। So first one here is parties involved. So joint ventures में क्या होता है? Parties in a joint ventures are called joint venturers और co-venturers। और partnership में क्या होता है? Partnership comprises of partners. So जो parties जॉइंट वेंचर्स में इन्वॉल्व होती हैं उन्हें को-वेंचरर्स या जॉइंट वेंचरर्स बोलते हैं। एज द नेम वेंचर एंड वेंचरर्स आपको जो है रिलेटेबल लगेगा तो आप उससे याद रख सकते हैं। और पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन। सो जॉइंट वेंचर कम्स टू एन एंड आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। द फर्म कंटिन्यूज अंटिल द पार्टनर्स अग्री टू डिसॉल्व इट। सो दोनों ही केसेस में ड्यूरेशन क्या है? जॉइंट वेंचर हमेशा
तो तब जो है ख़त्म कर दिया जाता है उस वेंचर को। जब तक अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर कंप्लीट हो चुका है तो वेंचर भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो फर्म होती है इट कंटिन्यूज़ अंटिल द पार्टनर्स अग्री टू डिसॉल्व इट। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टनर के एडमिशन पे भी पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जाता है और फिर से क्रिएट किया जाता है, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, इस तरह की भी चीज़ों की वजह से पार्टनरशिप जो है इट कम्स टू एन एंड। नेक्स्ट कम्स एंटिटीज़ नेम। सो जॉइंट वेंचर्स डजंट रिक्वायर अ यूनिक नेम, बट पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म्स मस्ट हैव इट्स ओन यूनिक नेम टू सिग्निफाई इट्स सेपरेट आइडेंटिटी। सो पार्टनरशिप के केस में एक यूनिक नेम होना ज़रूरी है, जबकि जॉइंट वेंचर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। सो नेक्स्ट कम्स प्रॉफिट एंड लॉस असरटेनमेंट। सो पार्टीज कैन असरटेन देयर प्रॉफिट और लॉसेज अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। पार्टनरशिप फर्म्स ऑलवेज असरटेन देयर प्रॉफिट्स एनुअली। सो अभी हमने पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस कब असरटेन किया जाता है जॉइंट वेंचर्स के केस में, तब जबकि जो ऑब्जेक्टिव्स जिसके लिए वेंचर को क्रिएट किया गया था वो कंप्लीट हो चुके हों, तभी वो प्रॉफिट या लॉस को असरटेन करते हैं। और जो फर्म्स होती हैं पार्टनरशिप फर्म्स, दे ऑलवेज असरटेन देयर प्रॉफिट्स एनुअली। नेक्स्ट कम्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो वन ऑफ द को-वेंचरर्स कैन मेंटेन ऑल द अकाउंट्स इन इट्स ओन बुक्स। और जबकि ऐसा होता है पार्टनरशिप में, दे हैव टू मैंडेटरीली मेंटेन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ पार्टनरशिप कि उन्हें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। यानी कि और जो जॉइंट वेंचर में जो को-वेंचरर्स होते हैं, दे कैन एनी वन ऑफ देम कैन मेंटेन ऑल दीज बुक्स इन इट्स ओन अकाउंट। तो वो अपनी ही जो है बिजनेस बुक्स में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही वो जो वेंचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ही कैन रिकॉर्ड। Next comes the closure of business. So venture comes to an end once the purpose for which they were formed are achieved. और पार्टनरशिप के केसेस में क्या होता है, पार्टनर्स कैन डिसॉल्व देयर फर्म्स विद म्यूचुअल कंसेंट। सो बिजनेस को क्लोज कैसे किया जाता है वेंचर्स के केस में, दिस कम्स टू एन एंड वंस द पर्पस फॉर विच दे वर फॉर्म्ड आर अचीव्ड। सो जब भी वेंचर्स को फॉर्म करने का जो पर्पस होता है बेसिकली, अगर वो अचीव हो चुका है, जो एम था वो कंप्लीट हो चुका है, तो ये वेंचर्स दे कम टू एन एंड, इन्हें एंड कर दिया जाता है। और जो पार्टनरशिप होती है इसके केस में क्या होता है, पार्टनर्स की म्यूचुअल कंसेंट अगर है, सभी जो है अग्री करते हैं कि फर्म को अब डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो उस तरह से बिजनेस को क्लोज कर दिया जाता है। सो नेक्स्ट वी विल सी MCQs बेस्ड ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट्स। सो ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इसमें MCQs भी जो है इंक्लूड किए हैं। आई होप आप सब इनके नोट्स भी बनाएंगे साथ ही साथ। सो लेट्स सी द MCQs. सो द फर्स्ट वन हियर इज जॉइंट वेंचर अकाउंट इज अ ऑप्शन नंबर A is personal account, B is real account, C is nominal account, D is none of the above. So joint venture account जो होता है उसका नेचर आपसे पूछा है यहाँ पे, तो आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पे पर्सनल, रियल और नॉमिनल है, और जो लास्ट वन है वो नन ऑफ द अबव है। तो यहाँ पे जो जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है ये नॉमिनल नेचर का होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर C करेक्ट है आपका। नेक्स्ट कम्स दी पार्टनर्स टू जॉइंट वेंचर आर कॉल्ड। अभी हमने पढ़ा को वेंचरर्स होते हैं या फिर जॉइंट वेंचरर्स भी कहा जाता है इन्हें। सो दिस वाज एन इजी वन। Let's move on to the next one. So abnormal loss of joint venture is debited to which of the following account? आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर A joint venture account, B is insurance company account, C is general profit and loss account, D is no account. So ऐसे केस में जब एबनॉर्मल लॉस हो जाए जॉइंट वेंचर को जो है स्टार्ट करने के बाद, अगर कोई ऐसा एबनॉर्मल लॉस अराइज होता है तो उसे हम कहाँ डेबिट करते हैं, यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि एबनॉर्मल लॉसेस होते क्या हैं। सो एबनॉर्मल लॉस इज़ अ काइंड ऑफ लॉस विच इज़ नाइदर एक्सपेक्टेड नॉर एंटिसिपेटेड बाय द बिजनेस एज इट इज़ ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड आवर कंट्रोल। सो अगर हमारे जो है कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड लॉसेस जो ना कि बिजनेस कभी एक्सपेक्ट करता है ना उसने उन्हें एंटिसिपेट करता है, इस तरह के कोई अगर लॉस अराइज होते हैं जिनके रीज़न उनका क्या होता है, दे आर ऑलवेज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फर्म, द बिजनेस, ठीक है। तो सच लॉसेस कैन बी लाइक लॉस कॉज ड्यू टू थेफ्ट होता है, या फिर फायर या एक्सीडेंट इस तरह का हो जाए, कोई फ्लड या अदर कोई ऐसा नेचुरल कैलामिटी आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल लॉस कॉज करती हैं। और जब एबनॉर्मल लॉस जो है जॉइंट वेंचर में होता है तो इट इज़ नॉट डेबिटेड टू एनी अकाउंट। तो यहाँ पे जो नो अकाउंट वाला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर D वो सही होगा। इट इज़ बिकॉज इफ़ दी गुड्स
बट अगर ऐसा है कि जो गुड्स उसमें डिस्ट्रॉय हुए हैं एबनॉर्मल लॉस की वजह से, ठीक है, इस तरह के किसी अनफोर्सीन इवेंट की वजह से कोई जो गुड्स हैं उन्हें उनमें लॉस जो भी हुआ होता है, अगर वो गुड्स इंश्योर्ड थे अगर और इंश्योरेंस क्लेम भी रिसीव हुआ, तो इस केस में जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाता है जो भी अमाउंट का जो क्लेम रिसीव होता है उस अमाउंट से। तो आपका यहाँ पे ये तो मेंशन है नहीं कि इंश्योर्ड थे या नहीं थे, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख जाएंगे कि जो एबनॉर्मल लॉस है जॉइंट वेंचर के केस में उसे किसी भी अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाता है। बट हाँ, अगर गुड्स इंश्योर्ड होते तो हम उन्हें जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट करते। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट कम्स अ माइनर कैन बी अ को-वेंचरर इन अ जॉइंट वेंचर। तो ये स्टेटमेंट आपको बताना है कि ये सही है या नहीं है कि एक जो माइनर होता है ही कैन बी अ को-वेंचरर इन अ जॉइंट वेंचर। सो आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, बी इज़ फॉल्स, सी यू कांट से एनीथिंग, डी इज़ पार्टली ट्रू। तो ऐसा होता है कि माइनर्स दे कैन नॉट बी अ जॉइंट वेंचरर। और पार्टनरशिप के केस में भी ये होता है कि जो माइनर्स होते हैं ना उन्हें पार्टनरशिप में जो है पार्टनर बनना अलाउ नहीं होता है, बट माइनर्स को जो है एडमिशन मिल जाता है एज अ पार्टनर, बट एज अ बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, बट नॉट एज अ पार्टनर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन बी सही है, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अ माइनर कैन बी अ को-वेंचरर इन अ जॉइंट वेंचर, तो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं हो सकता। माइनर्स कैन नॉट बी अ को-वेंचरर इन अ जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर। सो ऐसा कौन सा जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो जॉइंट वेंचर्स में अप्लाई नहीं होता है, एप्लीकेबल ही नहीं होता है। फर्स्ट वन इज A going concern concept, B is dual aspect concept, C is cost concept and D is all of the above. So ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो जॉइंट वेंचर में अप्लाई नहीं होगा, आप सोचिए। सबसे पहला वाला यानी कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिकॉज जॉइंट वेंचर्स को हमेशा एक लिमिटेड या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है, उससे ज़्यादा उन्हें कंटिन्यू नहीं किया जाता। तो इसलिए जो ए है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी ये अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है इसमें वोलेट होता है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज। So moving on to the next question, question number 6. When unsold goods is taken away by a co-venturer, the dash account is debited. So अगर joint venture ख़त्म हो रहा है और जो unsold goods हैं वो co-venturers अपने साथ ले जाए, कोई भी एक co-venture, तो क्या होता है, कौन सा अकाउंट हम डेबिट करेंगे। तो अगर ऐसा होता है कि गुड्स आर टेकन बाय द को-वेंचरर, तो हम एंट्री करते हैं बुक्स में को-वेंचरर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। सो इस केस में यहाँ पे हमसे यही पूछा कि कौन से अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, यानी कि एंट्री होगी आपकी जॉइंट को-वेंचरर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो यहाँ पे को-वेंचरर्स अकाउंट आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। एंट्री की जाती है इसकी को-वेंचरर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इसकी नंबरिंग बाय मिस्टेक 6 लिख दिया मैंने। सो व्हेन परचेजेस आर मेड फॉर द जॉइंट वेंचरर्स आउट ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट, द डैश अकाउंट इज डेबिटेड। सो अगर परचेजेस जो है जॉइंट वेंचर अकाउंट में से ही हो रही है, जो जॉइंट बैंक अकाउंट जो है ओपन किया जाता है, अगर जॉइंट वेंचर के लिए उसमें से ही परचेजेस जो है लिए जा रहे हैं, गुड्स खरीदे जा रहे हैं उस जॉइंट बैंक अकाउंट के ही थ्रू, तो कौन से अकाउंट को हम डेबिट करते हैं इस केस में। लेट्स सी, इट इज़ द जॉइंट वेंचर अकाउंट। सो जॉइंट वेंचर अकाउंट यहाँ पे डेबिट होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये 7 आप नंबरिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। सो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन, ऑप्शन ए है आपके पास को-वेंचरर रिकॉर्ड हिज ओनली हिज ओन ट्रांजेक्शंस, को-वेंचरर्स रिकॉर्ड ऑल ऑफ द ट्रांजेक्शन, सी इज बोथ ए एंड बी, डी इज नन ऑफ द अबव। सो आपसे ये पूछा है कि जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है उसे कब बनाया जाता है। ऑप्शन ए सेज जब को-वेंचरर जो है सिर्फ अपने जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करता है, या फिर को-वेंचरर जब सारे ही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहा है, या बोथ ए एंड बी यानी दोनों केसेस में ही मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट को बनाया जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऐसा होता है कि जब जो को-वेंचरर्स हैं दे चूज़ टू कीप देयर ओन रिकॉर्ड्स ओनली, तभी जो है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट उन्हें प्रिपेयर करना पड़ता है। एंड फॉर दिस पर्पस ईच ऑफ देम ओपन्स अ जॉइंट वेंचर विद को-वेंचरर अकाउंट भी यहाँ पे एक ओपन होता है, तो ये भी एक आपका लेजर अकाउंट ऐड हो जाता है इस केस में। सो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कब बनाया जाता है, व्हेन को-वेंचरर रिकॉर्ड्स ओनली हिज ओन ट्रांजेक्शंस। Moving on to the next question. The next question is the account opened in the books of X who is in joint venture with Y under memorandum joint venture method is headed as
डैश अकाउंट। सो अगर एक्स और वाई दोनों जो है को वेंचरर्स हैं, वो एक जॉइंट वेंचर में है, एंड मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड जो होता है, जिसमें यानी कि एक्स सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा और वाई सिर्फ अपने, तो ऐसे केस में जो है अगर वो बना रहा है अपने अकाउंट्स, तो जो अकाउंट उसने एक्स ने अपनी बुक्स में जो है ओपन किया होगा, उसकी हेडिंग क्या वो देगा। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए इज़ जॉइंट वेंचर, बी इज़ जॉइंट वेंचर विद वाई, सी इज़ जॉइंट बैंक, या डी इज़ नन। सो अभी मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी ये मेंशन किया था कि जब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड होता है, इस केस में क्या होता है, एक अकाउंट भी ओपन किया जाता है मेमोरेंडम जॉइंट अकाउंट के साथ साथ जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर्स अकाउंट, इस अकाउंट को भी जो है लेजर में इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जॉइंट वेंचर विद, यहाँ पे क्योंकि हमें वाई का नाम पता है इसलिए हम वाई मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये जॉइंट वेंचर विद जॉइंट वेंचरर अकाउंट होता। तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर विद वाई यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। सो नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर कीपिंग द अकाउंट्स ऑफ जॉइंट वेंचर देन। सो अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, सो अकाउंट्स ऑफ जॉइंट वेंचर उन्हें कहाँ पे जो है किस तरह से जो है प्रिपेयर किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए इज मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ऑप्शन बी इज ट्रांजेक्शंस टेक द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी अकाउंटिंग सिस्टम, option C is only joint venture and personal accounts of ventures are maintained, option number D is none. So अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर बीइंग केप्ट फॉर कीपिंग द अकाउंट्स ऑफ जॉइंट वेंचर, तो इस केस में क्या होता है, आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट ही बनाया जाता है। सो यहाँ पे सेपरेट सेट ऑफ बुक्स से ही आप समझ सकते हैं कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट एंटर्स हियर, ठीक है, वेन एवर देयर आर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। नेक्स्ट इज, in case of separate set of books are maintained, which of the following accounts should be opened? So अगर ऐसा है कि जो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स जो है को वेंचरर्स अपनी मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि एक्स और वाई अगर हैं जो है को वेंचरर्स, तो अगर एक्स अपनी सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, अपनी सेपरेट बुक्स बना रहा है, और वाई अपनी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बना रहा है, तो उसमें से कौन से जो है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी ओपन। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए इज जॉइंट वेंचर अकाउंट, बी इज जॉइंट बैंक अकाउंट, सी इज को वेंचरर्स अकाउंट, या डी इज शेयर या डिवेंचर्स अकाउंट, या इज ऑल ऑफ दी अबव। तो ऐसे केस में जबकि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन होती हैं, तो ये सारे ही लेजर अकाउंट्स जो है क्रिएट किए जाते हैं। आपके जो है जॉइंट वेंचर अकाउंट और जॉइंट बैंक वेंचर अकाउंट के तो एंट्रीज़ मैंने आपको उससे रिलेटेड बताई हैं, बट जो को वेंचर्स अकाउंट, ये भी आपने देखा, जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स अकाउंट है, इसमें क्या होता है बेसिकली, जब शेयर्स जो है को वेंचरर्स ही टेक्स अवे सम शेयर्स और डिबेंचर्स विद हिम, तो क्या एंट्री की जाती है, हमेशा को वेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर या डिबेंचर अकाउंट, तो इसलिए ये शेयर्स एंड डिबेंचर अकाउंट भी ओपन होता है। So this is all for today. Hope the topic is clear to you, and as in this week we will be covering accountancy as our topic for the one topic 1 week series. There are many more videos to come, so please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom एंट्रेंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल इंक्लूड देम एज वेल। स्टे होम, स्टे सेफ, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट with your friends, subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning!